ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? एकदम मस्त। ओके, आई वेलकम यू ऑल इन द दर्पण बैच ऑफ क्लास 12 फिजिक्स एंड टुडे इज इट्स 10th lecture. Okay, in the previous lecture I have discussed the concept of electric field intensity due to a point charge, properties of electric field lines and various problem based on it. Today we will discuss some more problem based on it, and after that we will start the concept of continuous charge distribution. Okay, so let's continue. Question: let us 3 point charges, each of magnitude plus q, are placed at 3 corners of an equilateral triangle of side A, and the name of the equilateral triangle is A, B and C, and we have to find out the resultant electric field at point A due to the other 2 points. So we have to find E net at A. This is the question. ओके, सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जो है कूलॉम्स लॉ के बेसिस पर किए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। सो नाउ कंटिन्यू। कैसे करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पॉइंट्स पता है कि कहां हमें नेट फील्ड बतानी है, ए पर। ओके, ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे कि ए पे किन किन चार्जेस के द्वारा किस डायरेक्शन में फील्ड लग रही है। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। इट डजंट मैटर द व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज ए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, because the charge kept at A just behaving like the test charge for the point B and point C. So आपको पता है कि जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है उसका कोई रोल नहीं होता है in the formula of electric field intensity. Okay, so due to B the field at A will be outward and you can write it E at A due to B. Okay, again due to C the field at A will be outward E at A due to C, and this is the an equilateral triangle, therefore this angle will be 60 degree 60 degree 60 degree. so ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर है? so E at A due to B equal to electric field at A due to B. What will happen? EAB equal to 1 upon K Q1 by R square, KQ by R square, and R square की वैल्यू क्या है? K, चार्ज ऑफ B Q और डिस्टेंस A स्क्वायर। सिमिलरली E at A due to C, electric field at A due to C, this implies E at A due to C equal to KQ by R square, this implies KQ by A square. Okay, again, but you are here seeing that at A there are 2 fields and separated by at angle 60 degree. So what will be resultant? Now net field at A will be E at A equal to under root E at A due to B का होल स्क्वायर, E at A due to C का होल स्क्वायर प्लस 2 EAB EAC cos और एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री।
क्लियर है? ई ए बी के क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो 1/2 टू 2 कैंसिल, दिस विल बी 3 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस विल बी √3 टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर what unit. This will be the answer. Then this type of question can be done if the side A is replaced by another side, the charge kept at A, B and C are changes that is given in magnitude, then the similar process will be taken up for solving the problem. If here is 2 microcoulomb, here is 3 microcoulomb, and this is the similar things 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर जो कुछ भी हो, then we have to find out the net field at A via this process again. This is a general question for finding the electric field at one vertex of an equilateral triangle due to the other two charges. Okay, take a screenshot of it. Okay, now the next problem is that the similar pattern, the same question will be, but the concept is changes only that the nature of one charge is changed. Okay, question number 2. plus q minus q, a b c a. Find net E at A. Find net E at A due to other charges. Due to other charges के कारण again we have to find out the net field E at A. Again the similar concept will be done, that is first of all we have to find out the field at A due to the other charges. तो B और C के कारण field होगा B behaving like a positive charge, the field at A due to B will be outward E at A due to B. E at A due to B. Okay. And due to C being a negatively charged, therefore this will be the inward field and this will be the direction of E at A due to C. Equilateral triangle, this angle is 60 degree, this angle is 60 degree, this angle is 60 degree. So this angle will be 120 degree. How? Because this straight line makes a linear pair. So one angle is given 60 degree. So other will be also 180 minus 60, that is 120 degree. Okay. So now E at A due to B equal to K Q by R square. This implies K Q by A square. Okay. E at A due to C, again K Q by A R square. This implies K Q by A square. क्योंकि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगे उसमें हम नेचर ऑफ चार्ज का साइन नहीं रखेंगे, इधर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा दे जा रहे हैं. यदि कोई ऐसा रूल नहीं होता कि दे आर आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड, देन द फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं होती तो वो स्केलर क्वांटिटी होती, तब वहां पर कॉन्सेप्ट लेते हैं उसका. बट यहां पर वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दे जस्ट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट. ओके, सो नेट field at A will be, so net field at A will be EA equal to
ई ए बी का स्क्वायर ई ए सी स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी ई ए सी cos 120 degree. Okay, so this implies under root kq by a square whole square kq by a square whole square plus 2 into kq by a square into kq by a square and to cos 120 degree. This implies cos 120 यहाँ लिखे थे, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, -1/2, 2 कैंसिल, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल आउट, रिजल्ट विल बी kq by a square whole square. This implies kq by a square unit. This will be the answer. So if the nature of one charge has been changed, the result changes from √3 kq by a square to kq by a square. In the previous case, the same question is there, but the C is positively charged, but in the here C changes to minus q and the result changes to kq by a square instead of √3 kq by a square. Okay, so a little change in the question makes a big difference. A little change in the question makes a big difference. So therefore the question must be done properly. Which angle is taken, either 120 or 60. Okay, and direction of the electric field must be clearly. Okay, so take a screenshot of it. It is okay. Okay, now next, question number 3. What is the question number 3? That is 4 charges of equal magnitude are placed at 4 corners of an square of side small a और स्मॉल x, कुछ भी हो सकता है, स्मॉल a हमने ट्रिगर किया, एंड 4 पॉइंट चार्जेस प्लस q प्लस q प्लस q and again the plus q. Name is given a, b, c and d. We have to find out the net field at a due to the other charges. So we have to find out E net at a. What will be the net electric field at a due to the other system of charges? Very easy question. हमने क्या बताया कि सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आए तो उस केस में हम लोग उस पॉइंट चार्ज पे, जिस पॉइंट पे नेट फील्ड पूछ रहा है, उस पॉइंट चार्ज पे आप देख लीजिए कि कितने भी साइड में या कितने भी अराउंड में पॉइंट चार्जेज है जिसके कारण वहां फील्ड बन सकती है पहले, और अलोंग विद द डायरेक्शन उनको रिप्रेजेंट कर लीजिए. उसके बाद तब उसके रिजल्टेंट के बारे में सोचिए, उनके एडिशन के बारे में सोचिए, उनके सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचिए. उस तरीके से आप रिजल्ट पे आसानी से रीच कर पाएंगे. ओके, सो हियर एक मिनट, ठीक. ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज केप्ट एट डी, द फील्ड इज आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है. You can write it E A D. Okay, one more. Due to B, again positively, and this will be again E at A due to B, and this is the third point charge, and this is the direction E at A due to C. ठीक. अच्छा, अब क्या देखना है कि हमें ये साइड नहीं पता है. तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये साइड है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ये साइड कितना हो जाएगा, a√2. आप कर सकते हो, क्लास 12th में हो, इतनी बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड AC को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड E at A
ड्यू टू बी, क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के प्लस क्यू चार्ज अपान में साइड ए स्क्वायर। अगेन ई एट ए ड्यू टू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू डी, बार बार लिखेंगे टाइम वेस्टिंग होगा। ई एट ए ड्यू टू डी के क्यू बाई आर स्क्वायर, फार्मूला के क्यू चार्ज kept at d and the distance of a from d is a, so square is a square. Now the third E at a due to c, k q by r square, k charge kept at c, q upon में distance of a from c is a root 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, k q upon 2a स्क्वायर। ओके अब क्या देख रहे हो आप कि E एट A ड्यू टू B एंड E एट A ड्यू टू D आर सेपरेटेड बाय एट एन एंगल 90 डिग्री, सेपरेटेड एट एन एंगल 90 डिग्री। ओके अभी EAC की बात छोड़ दीजिए, और आप देख रहे हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, मींस दे पार्टिसिपेटेड इक्वली, दे टेक पार्ट इन रिजल्टेंट इक्वली। सो इस तरीके के क्वेश्चन में जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उस समय जो उन दोनों के बीच का एंगल होता है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है वो जस्ट हाफ ऑफ द नेट एंगल होता है, मींस 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितने पे जाएगा, 45 डिग्री पे। तो जो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा बेटा जो है कि E एट A ड्यू टू B, E एट A ड्यू टू B एंड D, उसका डायरेक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दे जस्ट गो एट हाफ ऑफ द एंगल 45 डिग्री। ओके अलग एंगल होता तब रिजल्टेंट अलग डायरेक्शन में जाता, बट यहां पर इक्वल मैग्नीट्यूड है, बीचों बीच जाएगा 45 डिग्री से। सो E एट A ड्यू टू B एंड D, मीन्स हम रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी है, अंडर रूट E एट A ड्यू टू B का स्क्वायर, E एट A ड्यू टू D का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E एट A ड्यू टू B, E एट A ड्यू टू D cos 90, और cos 90 जीरो, तो cos 90 जीरो होगा तो ये पूरा प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E एट A ड्यू टू BD इक्वल टू अंडर रूट के क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहां पर हम लिख सकते हैं cos 90 इक्वल टू जीरो, सो रिजल्टेंट विल बी जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा पूरा। यहां से क्या मिल जाएगा, E एट A ड्यू टू BD इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर, E एट A ड्यू टू BD इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके तो एक वैल्यू आ गई, और हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ E एट A ड्यू टू C एंड E एट A ड्यू टू B एंड D आर सेम, so resultant will be sum of the magnitude of both the field at A. So लिख सकते हैं since the direction of E at A due to C and E at A due to B and D is same, so the net field at A will be, क्या हो जाएगा, E at A will be sum up of E at A due to C plus E at A due to BD, क्या हो जाएगा, E at A due to C, E at A due to C क्या हो जाएगा, यहां पर लिखे हैं के क्यू बाई 2A स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2, तो कॉमन कर सकते हैं यहां से, ये क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन 1/2 प्लस रूट 2 यूनिट।
ये नेट फील्ड हुई, ये नेट फील्ड हुई कहां पे, एट ए ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देने की बात है कि यदि हम एक छोटा सा मिस चेंज कर दें, एक क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर दें, देखिए क्या करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर क्वेश्चन, ए ए ए ए प्लस क्यू plus q, this is taken as minus q, sorry, b again we have to find e net at a, फाइंड ई नेट एट ए। सिमिलर क्वेश्चन, बस चेंज क्या किया हमने कि एक चार्ज सी को माइनस क्यू कर दिया। अंतर क्या होगा देखिए, फिर से वही काम करेंगे, प्लस बी के कारण फील्ड आउटवर्ड, ई एट ए ड्यू टू बी, ई एट ए ड्यू टू डी, and the third charge is the minus q, so the field at a due to the c will be downward, inward, e at a due to c। और आप देख पा रहे हो कि e at a और e at b d, इनका रिजल्टेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, क्या लिखोगे, e at a due to b d, e at a due to b and d, इस डायरेक्शन फील्ड की। अब क्या करोगे आप, तो आपको आंसर सब पता है क्या, कि E एट ए ड्यू टू बी इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, ई एट ए ड्यू टू डी के क्यू बाई ए स्क्वायर, ई एट ए ड्यू टू सी के क्यू बाई 2a स्क्वायर। इतना तो पता है। रिजल्टेंट आप ये एट ए ड्यू टू बी एंड डी, ये भी रिजल्ट आपको पता है। ये रिजल्ट कितना है, √2 टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं कि ई एट ए ड्यू टू बी डी और ई एट ए ड्यू टू सी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। अब इन दोनों बड़ी क्वांटिटी कौन है, ये बड़ी क्वांटिटी कौन है, ई एट ए ड्यू टू बी, सिंस द डायरेक्शन ऑफ E at A due to B D and E at A due to C is opposite, so net field at A will be, E at A will be equal to E at A due to B D minus E at A due to C. This implies √2 times KQ by A square minus 1 by 2 times KQ by A square. The result will be KQ by A square common और √2 minus 1 by 2 unit. ओके, सो थोड़ी सी चेंज करने से आंसर कैसे चेंज होगा, वहां पर प्लस था या माइनस था, इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जल्दीबाजी में हम कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या इस तरह क्वेश्चन में हम मिस्टेक ना कर जाए। सो वी हैव टू टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ पुटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइंडिंग द रिजल्टेंट बाय दिस प्रोसेस। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, now the next question, question number 5। जैसा कि हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉन्सेप्ट में इस तरह क्वेश्चंस किए थे,
उसी तरीके के फिर हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस one is of 1 microcoulomb and second one is of 4 microcoulomb. That is, it is q1 and it is q2 and separated by a distance of 9 meter. Separated by a distance of 9 meter. We have to find out the position of the third point charge या पोजीशन ऑफ द थर्ड पॉइंट चार्ज, या हम ऐसा कोई पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। थर्ड पॉइंट चार्ज की हम बात ही ना करें, थर्ड पॉइंट की हमें पोजीशन पता करनी है जहां पर नेट फील्ड क्या हो, 0। दैट इज फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस तो पता है, पोजीशन ऑफ point charge where net field is 0। यही हमें थर्ड पॉइंट की पोजीशन बतानी है। थर्ड पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी, 2 पॉइंट तो पता है, हमें थर्ड पॉइंट चार्ज की पोजीशन बतानी। 2 पॉइंट चार्जेस तो पता है आपको। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग वहां पर किए थे। और एक चीज मैं बता दूं कि आप सोचिए कि एक स्मॉलर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का और ये है 4 माइक्रोकूलम का, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन है 9 मीटर। ठीक, तो हमेशा पॉइंट चार्ज की जो पोजीशन होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स होगी, या तो बाहर हो सकता है या तो इनवर्ड हो सकता है। अब बोथ आर लाइक चार्जेस और नेट फील्ड 0 दिखाना। तो यदि हम यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, तो आप सोचिए कि यदि इस पॉइंट पी पे हम नेट फील्ड निकालें एट ए और एट ड्यू टू बी, तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ई एट ए ड्यू टू E at P due to A and E at P due to B। तो यहां पर नेट फील्ड 0 कहां होगा, नेट फील्ड का तो सम हो रहा है। इन द सिमिलर वे यदि हम पॉइंट चार्ज को रखें P को, तो ड्यू टू A फील्ड आउटवर्ड, ड्यू टू B अगेन पॉजिटिव, बोथ आर E at P due to A, E at P due to B, दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट हो जाएंगे। मींस जब सिमिलर चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो उस केस में थर्ड पॉइंट चार्ज जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो, उनकी पोजीशन आउटवर्ड नहीं होगी, आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस नहीं होगा। ठीक, अब बचा थर्ड बीच में। यदि हम बीच में लें, यदि बीचों बीच लें बेटा, तो यहां के कारण, बी के कारण यहां फील्ड इधर E at P ड्यू टू B, और A के कारण इधर फील्ड E at P ड्यू टू B, और ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि बीचों बीच 4.5 मीटर पे रखोगे तो आपको E का फार्मूला पता है, KQ/R²। ये वाला जो B वाला चार्ज है ज्यादा है, जिसके कारण ये ज्यादा हो जाएगा, और A के कारण चार्ज कम है, ये वाला मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा यदि हाफ ऑफ डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे रखोगे। तो हमारा मोटिव क्या है कि वी हैव टू बैलेंस दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो नेट फील्ड 0 होगा, बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेट फील्ड एट ए विल बी, एट पी विल बी 0। तो फॉर नेट फील्ड एट पी विल बी 0, आप देखोगे ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके कारण फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके कारण क्या होगी, कम होगी। बचा अब आर का रोल, क्यू के कारण, इसके कारण फील्ड ज्यादा, इसके कारण फील्ड कम। अब आर का रोल देखिए, यदि हम +4 माइक्रोकूलम के नियर रख देते हैं, तो +4 माइक्रोकूलम से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस कम, फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। 1/r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, फील्ड ज्यादा। 1 माइक्रोकूलम से उसकी डिस्टेंस ज्यादा,
क्योंकि वो +4 माइक्रोकुलाम के क्लोजर रखा हुआ है, तो इस ए के कारण जो वहां फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, कम। आर ज्यादा तो 1/r² की वैल्यू कम। अब देखो इधर ज्यादा ज्यादा, इधर कम कम, फिर जो है पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा कि नेट फील्ड एट पी विल बी 0। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा कि यदि हम ऐसा करें कि इस पॉइंट ए के क्लोजर इस पॉइंट पी को रखें, तो जो इस क्यू के कारण जो यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर ये था फील्ड, यहां पर कमी था, ये 1 माइक्रोकुलाम कारण कम फील्ड हो रही थी एट पी पे। क्यू के रिगार्डिंग क्यू ज्यादा था, फील्ड ज्यादा, क्यू कम था, फील्ड कम। बट यदि हम r² डिस्टेंस फ्रॉम 4 माइक्रोकुलाम से बढ़ा दे तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। 1/r², आर बढ़ गया, 1/r² की वैल्यू घट जाएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की कम। इस केस में आर की वैल्यू क्लोजर कर दिए, आर की वैल्यू क्लोजर कर दिए, तो आर की वैल्यू कम, 1/r² की वैल्यू ज्यादा, ओवरऑल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये ज्यादा और ये कम, यहां पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है कि ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। इसीलिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि वेयर शुड बी द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, या फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड वेयर द नेट फोर्स विल बी 0, नेट फील्ड विल बी 0, उस केस में जो पोजीशन ऑफ द थर्ड पॉइंट चार्ज होगा वो हमेशा कहां से लोगे आप, फ्रॉम द स्मॉलर पॉइंट चार्ज, फ्रॉम द स्मॉलर पॉइंट चार्ज। और इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब लाइक चार्जेज होंगे, जब लाइक चार्जेज होंगे तो उस केस में जो है, जो थर्ड पॉइंट चार्ज का सिस्टम होगा, जगह होगा, वो कहां होगा, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होगा। और अभी अपोजिट नेचर वाला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो आइए कैरी करते हैं आगे क्वेश्चन। हमारा काम है बेटा सिखाना आपको, और आपका काम है सीखना। इट डजंट मैटर कि जो है कैसे सिखा रहे हैं, कैसे नहीं सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं आपको, और एक बेहतर वे में आपको एक बढ़िया तरीका बता के जाएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को टेक आउट करेंगे। और एक चीज और कि कोई टीचर आपको बोर्ड एग्जाम में 99% नहीं दिला सकता, ये आप ध्यान दीजिएगा। कोई टीचर आपको बोर्ड एग्जाम में 100% नहीं दिला सकता। क्यों नहीं दिला सकता है? क्योंकि कोई टीचर सिर्फ एक टेक्निक बता सकता है, एक मॉनिटर है, मॉनिटरिंग कर सकता है किस तरह क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, इस तरह क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर टू सॉल्व वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स, आइदर मैथ, आइदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, on the board or in your classroom or in the copy notebook. So first thing, it will be taken by yourself that you must have a proper study time. If the teacher has solved the one problem like this, two problem like this, then you have to solve 10 problem like this. This is the dedication. तब आप आगे जाओगे, और आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि टीचर आए पढ़ा दिए। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, वो आपके उसके पढ़ाने का तरीका आपके माइंड के अंदर एक सेट कर सकता है कि कैसे क्वेश्चंस को समझना है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कैसे अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन के वेस को, तरीके को करने को। लेकिन और उस बिहाफ पे एक टीचर आपके माइंडसेट में 85-90% तक रीच करा सकता है, यदि आप प्रॉपर उसकी चीजों को रिपीटेशन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो तब। और यदि आप मन से ज्यादा डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप 90 के बाद जितना आप मेहनत करोगे वो आप स्कोर कर सकते हो। 85 के बाद जितना आप मेहनत कर रहे हो वो स्कोर कर सकते हो। यह नहीं कोई टीचर कह दे अरे हमारे वजह से 100%, अरे नहीं भैया, उस बच्चे का मेहनत है, उस बच्चे का मेहनत है, वो किया है तब 90 से 100 लाया। आपका काम था सिर्फ 80, 85, 87 तक ले जाने। उस बच्चे ने मेहनत किया क्योंकि आपका सारा पढ़ाई हुआ क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, आपके पढ़ाए हुए टाइप के क्वेश्चन आए, एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछ दिए पेपर में, तो उस बच्चे ने मेहनत किया था, उस तरह के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम द रिपीटेशन, फ्रॉम द रिवीजन बाय सेल्फ। तब दोनों का रिजल्टेंट हुआ,
तब ऐड हुआ, और 87 से +5 +10 +12 इस तरीके से एडिशन होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिजल्टेंट आप यहां पढ़े। ऐसे ही आपके डेली बेसिस पर, डेली लाइफ में आप अपने नॉलेज का रिजल्टेंट करते चलिए। ये नहीं सर पढ़ा दिया इतना तो बहुत है, इतना आ जाएगा, नहीं बेटा मेरे भाई नहीं आएगा। हम नहीं कह रहे कि मैं 100% आपको दिला पाऊंगा। मैं ये कह सकता हूं कि मैं 80, 85, 87, 89 तक ले जाऊंगा, बट आप यदि मेहनत नहीं करोगे तो वो 89 भी कन्वर्ट हो जाएगा 60 में, 50 में। प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, नहीं। ये क्वेश्चन नीट में आएगा, नहीं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आएगा, नहीं। इस टाइप क्या आ सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दे, या दोनों प्लस है दोनों माइनस कर दे बस। सर तो ऐसा क्वेश्चन बताया नहीं थे यार क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन सर नहीं बताया तो कॉन्सेप्ट तो बताया था, आपने किया था ऐसा क्वेश्चन, तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड सेट को रहना चाहिए कि लाइक चार्जेस, थर्ड पॉइंट चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू। ओके, तो सॉल्यूशन ए बी, थर्ड पॉइंट चार्ज कहां होगा, बीच में, नियरर टू द स्मॉलर चार्ज, दैट इज पॉइंट बी। अब इस पॉइंट बी पे हम फील्ड बना देंगे ड्यू टू पॉइंट ए और ड्यू टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पॉजिटिव, फील्ड विल बी आउटवर्ड, ई एट पी ड्यू टू ए। बी के कारण फील्ड आउटवर्ड, ई एट पी ड्यू टू बी। ठीक, मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए तो ई एट पी ड्यू टू ए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at A due to sorry at P due to A, तो E at P due to A will be K A पे चार्ज Q by R स्क्वायर, K Q 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 अपन R स्क्वायर। R डिस्टेंस नहीं पता है, लेट कर लीजिए, यहां से इनकी डिस्टेंस x, तो यहां से इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9 - x, और ये x मीटर, तो सही में है x का स्क्वायर। आल्सो E at P due to B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B इक्वल टू E एट P ड्यू टू B इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। KQ की वैल्यू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 9 - x का होल स्क्वायर। ओके, सो फॉर नेट equal to 0, we have E at P due to A equal to E at P due to B. This implies K into 1 into 10⁻⁻6 upon x square, K into 4 into 10⁻⁻6 upon 9 - x square, K खत्म, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 खत्म, this will be 1 upon x square equal to 4 upon 9 - x का होल स्क्वायर। दिस implies 9 - x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस implies 9 - x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। 9 - x अपॉन x इक्वल टू +-2। इस ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों वैल्यूज रख सकते हो आप। 9 - x अपॉन x इक्वल टू +2, 9 - x इक्वल टू 2x, 9 इक्वल टू 2x + x, 9 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 9/3, x इक्वल टू 3 मीटर। अगेन 9 - x अपॉन x -2, 9 - x इक्वल टू -2x, 9 इक्वल टू -2x + x, x 9 इक्वल टू -x, x इक्वल टू -9 मीटर। तो -9 मीटर मीन्स x के पीछे जाइए, x के पीछे जाइए, क्योंकि यहीं से हमें
इस Q1 से ही डिस्टेंस लेनी थी, इसके पीछे जाइए -9, वो पॉसिबल नहीं था, आप लोग को पिक्चर में बता दिया कि जब लाइक चार्जेज होंगे तो वहां पर जो पोजीशन ऑफ द थर्ड पॉइंट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब पॉजिटिव वे में। सो x = 3 मीटर इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। आप इसको करिए, कि आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, कर लीजिए। ओके, यदि हम इस तरह की बात करें, इसको हम इरेज कर रहे हैं अब। ओके, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ जाएगा तो इतना बड़ा मेथड लेके हम क्या करेंगे भैया, इतना बड़ा मेथड लेके क्या करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस x, ठीक है। और मैं बताना है थर्ड पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, लाइक चार्जेज होंगे। हम लिख दे रहे हैं वेयर Q1 Q2 आर लाइक चार्जेस, then the position of third point charge where the net field or force is 0 will be √Q1 upon √Q2 plus √Q1 मल्टीप्लाइड बाई x। और ये जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज फ्रॉम द दिस डिस्टेंस will be always from the smaller charge। ठीक, आप कहोगे ये क्या बता दिया सर, ये तो ही ना कमाल की बात कि आपने एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया। अब तो टीचर पूछेगा, मैं धड़ाम से करके इन सब धड़ाम से बताऊंगा, धड़ाम से बताने के चक्कर में कि गिर मत जाइएगा जो है। ठीक है, आइए इसको क्रॉस चेक करते हैं। आया है आपका राइट आंसर x = 3 मीटर। तो आई होप कि आंसर आना भी चाहिए। ओके, आप देख रहे हो यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस 9 मीटर, 1 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोकुलाम। ठीक, स्मॉलर चार्ज दिस, मतलब यहां से कोई डिस्टेंस होगी, मान लीजिए यहां से हम डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, r। ठीक, आ रही है, हमें पता करना है। तो r = √Q1 √Q2 √Q1, यहां लिखना है √Q1 1 माइक्रोकुलाम अपान √Q2 4 माइक्रोकुलाम प्लस √1 माइक्रोकुलाम Q1 इंटू x9। तो √1 माइक्रोकुलाम कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, √1 माइक्रोकुलाम ऊपर हो ही गया, नीचे √1 माइक्रोकुलाम यदि हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा क्या, √4 प्लस √1 और होल ब्रैकेट में जो है x। तो ये एक खलास 1 अपान √4 प्लस √1 x, सॉरी 9 9 1 अपान 2 प्लस 1 9 1 अपान 3 इंटू 9 3 3 जा 3। अरे वाह, क्या आंसर आया मेरे भाई,
3 वहां भी आया था और प्रीवियस जैसे हमने पूरे मेथड के सॉल्व किया वैसे आंसर आ गया। इसका मतलब तरीका सही है, सही है मेरे भाई। जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा नीट लेवल में, आईआईटी लेवल में, चाहे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उतना दूर भटकने की जरूरत नहीं। यदि ऑब्जेक्टिव आया, यू विल ट्राई दिस मेथड, यू विल ट्राई दिस मेथड। यदि यहां पर Q1 इज लेस देन Q2 हो तो Q1 से यहां डिस्टेंस R, डिस्टेंस में हम पॉइंट P ले ले और वही R की क्या हो जाएगी वैल्यू, R की वैल्यू आ 3 मीटर। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और ऐसे क्वेश्चंस को आप इस ट्रिक के साथ करिएगा। आप खुद कहोगे कि नहीं सर ने क्या लॉसबॉब ट्रिक बताई है जो है, इस तरीके से क्वेश्चंस हम कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 2 point charges plus 1 microcoulomb minus 16 microcoulomb। ओके, या फॉर एग्जाम्पल में आप -4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -4 microcoulomb और they are separated by a distance of x meter। We have to find out the third point charge, position of third point charge, where the net electric field is 0, where the net electric field is 0। या आप इसको ले सकते हो, कुछ भी आप डिस्टेंस ले लीजिए, आपका मन है कि आप इसको नंबरिंग में लेके चलना चाहते हो, आप ले सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप 10 मीटर ले लीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक, अभी हमने बताया कि जब लाइक चार्जेज होंगे, जब लाइक चार्जेज होंगे बेटा, तो उस समय जो पोजीशन ऑफ द थर्ड पॉइंट चार्ज होगी वो बीच में होगी। तो इसका मतलब यहां पर चार्जेस का नेचर तो लाइक है नहीं, क्या है, अनलाइक। तो यहां पर जो पोजीशन ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज होगी वो कहां होगी, बाहर। वो क्या होगी, बाहर। अच्छा मेरे भाई, जब बाहर होगी तो आप देखो, यदि हम इसको समझा दें, ये मान लो Q है, ये -Q है, बीच में तो ले नहीं सकते, बीच में लोगे, मान लो ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है, तो ये पॉजिटिव बाहर E एट P ड्यू टू A, ये माइनस फिर खींचेगा E एट P ड्यू टू B, तो नहीं होगा अंदर 0। तो पॉसिबिलिटी क्या है, बाहर। और बाहर जब भी लोगे तो आपको मैंने बताया कि हमेशा जो पॉइंट या पोजीशन लोगे थर्ड पॉइंट चार्ज का, वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर चार्ज से लेंगे। क्यों लेंगे ये भी रीजन मैंने बता दिया है, क्यों लेंगे ये भी रीजन बता दिया है। तो आइए इस क्वेश्चंस को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं बाहर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ, हमें फाइंड आउट क्या करना था, अभी लिख लेंगे पूरा क्वेश्चन। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज या थर्ड पॉइंट वेयर द नेट फील्ड इज 0। थर्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं, नेट फील्ड इज 0। ओके, सॉल्यूशन। -4 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम, 10 मीटर। थर्ड स्मॉलर चार्ज इज 1, स्मॉलर चार्ज इज 1। सो यहां से हम स्मॉल x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले रहे हैं, इनको नाम दे दे रहे हैं A। तो इस P पे हम फील्ड निकाल लें दोनों के साइड। तो इस फील्ड पे यदि हम दोनों के थ्रू फील्ड निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये A पॉजिटिव E एट P ड्यू टू A बाहर, और B निगेटिव, फील्ड क्या होगी इनवर्ड E एट P ड्यू टू B।
नाउ EPA इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, EPA इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। के क्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ अपन आर कितनी डिस्टेंस पे x स्क्वायर। आल्सो EPB इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, EPA इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, के क्यू कितना है 4 माइक्रोकूलम 4 इंटू 10⁻⁶। अच्छा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 है और यहाँ से x, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 प्लस x मीटर, x मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, तो फॉर नेट फील्ड एट एट P विल बी 0, फॉर नेट फील्ड एट P इक्वल टू 0 वी हैव, क्या हो जाएगा EPA इक्वल टू EPB। ठीक है, EPA की वैल्यू K इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू EPB, सॉरी K 1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन x स्क्वायर, K इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10 प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, K गया, K से 10⁻⁶ बचा क्या 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 10 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4, 10 प्लस x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस 2। टू रिजल्ट विल बी पॉसिबल, 10 प्लस x अपॉन x इक्वल टू प्लस 2, 10 इक्वल टू एक मिनट, ठीक है 10 प्लस x 2x, 10 इक्वल टू 2x माइनस x इक्वल टू 10 मीटर, x इक्वल टू 10 मीटर। ठीक, दूसरे वे में 10 प्लस x अपॉन x इक्वल टू -3। और आपने ऑलरेडी x को पॉजिटिव लिया है, यदि x को आप निगेटिव लेते तो फिर ये निगेटिव दिखता, लेकिन आपने ऑलरेडी x की वैल्यू को पॉजिटिव लिया है तो रिजल्ट आपका हमेशा क्या आएगा 10 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर रिजल्ट विल बी +10। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान है। आप समझ गए होंगे कि यदि अनलाइक चार्जेज होंगे, पोजीशन ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज विल बी आउटसाइड एंड नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। इफ दे आर लाइक चार्जेस, द पोजीशन ऑफ द थर्ड पॉइंट चार्ज will be in between the 2 point charges and nearer to the third point charge. Okay, so I hope कि आपको समझ में आया होगा। Take a screenshot of it. Okay, so एक ट्रिक हम लोग यहां पर फिर इसके लिए हम लोग देखेंगे कि थर्ड पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पोजीशन कैसे जो है बना पाएंगे। जैसे हम लोग लाइक चार्ज में बनाए, तो क्या ऐसा कोई अनलाइक चार्जेज में ट्रिक है मेरे भाई?
जैसे मान लीजिए ट्रिक Q1 माइनस Q2, सॉरी Q1 Q2 सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस x, और यहाँ पर इफ Q1 कामा Q2 आर अनलाइक चार्जेस then the position of third point charge will be, मान लेते हैं r डिस्टेंस में आपने लिया और Q1 दिखा दीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 क्या है, Q2 से छोटा है, तो यहीं से r डिस्टेंस पे हम ले लिए। r डिस्टेंस पे थर्ड पॉइंट चार्ज P ले लिए, जहां पे नेट फील्ड क्या है, 0 है। थर्ड पॉइंट चार्ज वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स विल बी 0 इज गिवन बाय, तो वहां पर बीच में क्या था माइनस, सॉरी वहां पर बीच में क्या था प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 multiplied by x. This is the short trick formula for finding the position of the third point charge where the field is equal to 0. So I am applying this formula to this question and you will able to see that the result of x equal to 10 meter. See, r equal to अंडर रूट Q1 1 माइक्रोकुलाम अपॉन अंडर रूट Q2 4 माइक्रोकुलाम माइनस अंडर रूट 1 माइक्रोकुलाम मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर। ठीक, अंडर रूट 1 माइक्रोकुलाम ऊपर एज इट इज, नीचे अंडर रूट 1 माइक्रोकुलाम हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 1 और मल्टीप्लाइड बाई 10, अंडर रूट 1 खत्म, बचा 1 अपॉन अंडर रूट 4 2 माइनस अंडर रूट 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1 अपॉन 1 इंटू 10, दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 10 मीटर। तो जब क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा तब आप लॉन्ग मेथड का यूज कीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक में पूछा, ऑब्जेक्टिव में पूछा यदि, देन यू हैव टू यूज द डायरेक्ट फार्मूला, आइदर दिस इज ट्रू for both, that is electric field and force where the will be 0. Okay, so take a screenshot of it. Okay, so for today class it's over and in next class I will discuss the concept of continuous charge distribution, क्योंकि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ पॉइंट चार्ज की, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे जो है, और वेरियस डेरिवेशन और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।